Now see here, this is energy level diagram for hydrogen atom. Now what will be the energy of the electron of hydrogen atom in nth cell? जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन nth सेल में होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज क्लियर? And this electron can go to the higher energy level by gaining some energy, and it can come down to some lower energy level by losing some energy, and that energy will be equal to the difference of the energies possessed by the electron in those two levels. For example, when electron comes from here to here, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तब क्या होगा? यहाँ एनर्जी क्या है? इन द के सेल, फॉर के सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1. सो फॉर के सेल n इक्वल्स टू 1, व्हाट विल बी द एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाइल इन द एल सेल इलेक्ट्रॉन विल हैव हाउ मच एनर्जी? -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी उसकी एल सेल में होगी. इन विच सेल इट इज हैविंग मोर एनर्जी? सो यू कैन सी हियर -3.4 इज लेस निगेटिव देन दिस, मीन्स यहाँ पर एनर्जी अधिक है और यहाँ पर एनर्जी कम है. सो व्हेन इट विल मूव, व्हेन इट विल ट्रांजिट फ्रॉम एल सेल टू द के सेल, व्हाट विल हैपन? इट विल इमिट आउट, इट विल रेडिएट आउट हाउ मच एनर्जी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10.2. सो इट विल इमिट आउट, इट विल रेडिएट आउट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एंड दिस एनर्जी विल बी रेडिएटेड इन टर्म्स ऑफ ए सर्टेन वेवलेंथ. इन टर्म्स ऑफ द सर्टेन वेवलेंथ मीन्स करस्पॉन्डिंग टू दिस इमिशन ए सर्टेन वेवलेंथ विल बी इमिटेड. एक सर्टेन वेवलेंथ का रेडिएशन क्या होगा? इमिट आउट होगा. Similarly, if electron moves from K cell to the L cell, what will happen? It will absorb how much energy? 10.2 electron volt energy it will absorb. ये जब 10.2 इलेक्ट्रॉन K सेल का इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो L सेल में पहुंच जाएगा. एंड दिस एनर्जी विल आल्सो बी एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ. और वो वेवलेंथ कितना होगी? सो अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई है, सो दैट वी नो दैट इट विल बी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा. मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू hc अपॉन डेल्टा ई. नाउ हाइड्रोजन एटम वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द बामर. बामर ने क्या है? सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कवर किया था. And he found that hydrogen atom will emit out a visible spectrum. Spectrum means that will be visible. जो चीज़ विजिबल ही नहीं उसको हम स्पेक्ट्रम क्या कहेंगे? So it was discovered by Balmer, and Balmer had discovered these 4 lines. 6563 angstrom, 4861 angstrom means the hydrogen atom emits out these 4 lines whose wavelength lies this. And he had suggested one empirical formula which was equivalent to this. उन्होंने कुछ दूसरा फार्मूला सजेस्ट किया था, पर बाद में पाया गया कि जो फार्मूला उन्होंने दिया था वो ये क्या था? इस तरीके से था जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से मिला था. एंड इट वाज फाउंड दैट these lines are called the Balmer series lines. It was found that the Balmer series lines emit out when transition take place from some higher energy state to the energy state corresponding to n equals to 2. Balmer had discovered that this Balmer series lines are emitted when transition of the electron take place from some higher energy level to the energy level corresponding to n equals to 2. Means Ni equals to n. to NF equals to 2. It's clear. So if when you will substitute in this, what will be the wavelength?
wavelength of Balmer series lines will be given by 1 upon lambda equals to, here in place of NF you will write 2. So R within bracket 1 upon 2 square minus 1 upon n square. This formula is very, very important. And it was found that the first 4 lines of the Balmer series, they lie in the Wijbel region. जो पहली 4 लाइन्स थी वो किस रीजन में लाई कर रही थी? विजबिल रीजन में लाई कर रही थी. रेस्ट वेयर लाइंग इन द अल्ट्रावायलेट रीजन्स. सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द Balmer series line. Now you can see here what will be the, when, in which case lambda will be maximum and lambda will be minimum. So lambda will be maximum when delta E is minimum. जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी मिनिमम होगा, बिकॉज h इंटू सी प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज कांस्टेंट. सो व्हेन डेल्टा ई इज मिनिमम देन व्हाट विल हैपन? लैम्डा विल बी मैक्सिमम. सो सी हियर डेल्टा ई विल बी मिनिमम व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 3 to 2. जब ट्रांजिशन 3 से 2 होगा मीन्स जस्ट हाइयर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू 2 होगा, देन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इमिटेड आउट एंड द वेवलेंथ सो इमिटेड विल बी मैक्सिमम. बट व्हेन द energy transition takes place from some higher energy level means from n equals to infinity. It's clear. And about energy continuum, I have explained that if you see on the energy level diagram of hydrogen atoms, these energy levels are coming closer in terms of the energy के टर्म्स में पास आते जा रहे हैं. यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? नियरली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हियर व्हाट इज द डिफरेंस? 0.85 एंड इट इज 1.51, so it is nearly 0.66 electron volt. It's clear. What is the difference here? It is nearly 0.34 electron volt. Here how much the difference? यहाँ पर कितना? 0.16 है. Means in terms of energy they are coming closer. So at a very higher energy level what will happen? हमको इस तरीके के discrete levels, discrete मतलब जो अलग अलग हों, वो नहीं मिलेंगे क्योंकि गैप इतना कम हो जाएगा दैट देयर विल बी ए कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड एट n equals to infinity. What will happen? These energy levels will overlap and they will constitute a continuous range of energy, that is called the energy continuum. So minimum wavelength will be emitted out when transition take place from where to where? Infinity से 2. और जो मिनिमम वेवलेंथ है यहाँ पर कैलकुलेट की गई है 3646 शायद है. कितना है? 3646 एंगस्ट्रॉम. इट इज क्लियर. दैट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ. लेटर ऑन इट, सो Balmer series lines are emitted in which case? When transition of electron in the hydrogen atom takes place from some higher energy level to the energy level corresponding to 2. It's clear. What will be the wavelength? Wavelength will be given by this formula, 1 upon lambda equals to r within bracket 1 upon 2 square minus 1 upon n square, where n takes the value from where? 3, 4, 5 and so on. In which case the maximum wavelength will be emitted? Maximum wavelength will be emitted when delta E is minimum. Delta E will be minimum in which case? When transition takes place from 3 से 2, means from just higher energy level. It's clear. Maximum wavelength will be emitted when minimum wavelength will be emitted when transition take place from n equals to infinity to n equals to 2. ये सब चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए. First 4 lines of Balmer series which are having these wavelength they lie in the Wijbel region, क्योंकि यही हमको दिखाई देंगी. रेस्ट क्या है? दिखाई नहीं देंगी. So this is the Wijbel part of the Wijbel spectrum of the hydrogen atom. Now see here. It was later found that besides Balmer series lines, hydrogen also emit the invisible spectrum. मतलब क्या है? ये invisible lines भी emit करता है. आए समझे? और वो किस रीजन में लाई करती, वो कब प्रोड्यूस होती हैं? सो दे विल बी प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड्स एट वेयर? एट n equals to 1.
आर एन इक्वल्स टू 3, आर एन इक्वल्स टू 4, मतलब ट्रांजिशन किसी हाइयर एनर्जी लेवल से शुरू हो और कहाँ पर आके ख़त्म हो, n इक्वल्स टू 1 पर, या n इक्वल्स टू 3 पर, या n इक्वल्स टू 4 पर, या n इक्वल्स टू 5 पर, then we will get the other series lines also. So see here, prominently there are 5 series lines. One is the Lyman series line. Lyman series lines are emitted out when transition ends at energy level corresponding to n equals to 1. किसी हाइयर एनर्जी स्टेट से शुरू होके के सेल पर आके ख़त्म हो, तब क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज की लाइंस मिलेंगी. व्हाट विल बी द wavelength? Wavelength will be given by this formula, 1 upon lambda equals to r. What will be the formula? Who can tell? 1 upon 1 square minus 1 upon n square. Here n takes the value from where? 2, 3, 4 to infinity. And they will lie in what region? In ultraviolet region. ये ultraviolet region में lie करती है. It's clear? Now you can see here. Here maximum wavelength will be emitted in which case? जैसे यहाँ था, जब 2 से 1 ट्रांजिशन हो. मिनिमम कब वेवलेंथ इमिट आउट होगी? यही न्यूमेरिकल्स में आते हैं. फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, या मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रॉम n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से 1. इट्स क्लियर? देन देर आर वन मोर सीरीज, पास्चन ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज लाइन्स. एंड पास्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज लाइन्स आर lying in the infrared region. Lyman, after that Balmer, then Paschen series lines. So here you can see transition, when the transition takes place from where? Ni equals to n to nf equals to कौन सा? 3. जब 3 पर एंड होगा तो पास्चन सीरीज. What will be lambda? 1 upon lambda equals to r. It is 1 upon minus 1 upon 4 square. It's clear? n takes the value from where? It is गलत ये लिख गए, n equals to 4, 5, 6 and so on. मिनिमम एंड मैक्सिमम तुमको मालूम है. मिनिमम विल बी इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी से यहाँ पर. व्हेन इट विल टेक प्लेस फ्रॉम 4 to 3 मैक्सिमम. देन ब्रैकेट सीरीज लाइंस, सो वो हम केवल जस्ट लिख रहे हैं. ब्रैकेट सीरीज लाइंस की वेवलेंथ क्या होगी? इट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन ट्रांजिशन एंड्स वेयर? एट n इक्वल्स टू 4. ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 4 पर आके खत्म हो. बट ये सब केवल किसके लिए है? हाइड्रोजन एटम के लिए है. n स्क्वायर. इट्स क्लियर? एंड देन फुंड सीरीज. सो फुंड सीरीज यू कैन सी हियर, दिस इज फुंड सीरीज लाइन्स. When transition ends at n equals to 5, so it will be 5 square minus 1 upon n square, where n take the value from where? 6, 7 and so on. It's clear? So ये हाइड्रोजन लेवल, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम मालूम होना चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए कि वो कितनी लाइन्स इमिट करता है. सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय बामर, एंड बामर हैड डिस्कवर्ड दैट इट इमिट आउट द 4 लाइन्स विच लाई इन द विजिबल रीजन व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू द एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल्स टू 2. इट्स फर्स्ट 4 लाइन्स लाइज इन द विजिबल रीजन. अदर लाइन्स आर लाइंग इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. जो दूसरी लाइन्स हैं वो सब किस में लाई करती हैं? अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं. आफ्टर दैट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट बिसाइड्स बामर सीरीज इट आल्सो इमिट्स द अदर लाइन्स व्हेन ट्रांजिशन एंड्स एट n इक्वल्स टू 1 r n इक्वल्स टू 3 r n इक्वल्स टू 4. आए समझ? वो कौन सी हैं वो तुमको हमने बता दिया है. आए समझे? इसके बाद क्या है?
इसको बता नाउ सी हियर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम यहाँ पर फाइंड आउट क्या करेंगे, ये एक न्यूक्लियस है ऐसे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है। एटॉमिक नंबर जेड होने का मीनिंग क्या है, देयर विल बी हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जेड। और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, ई। सो कितना है, प्लस जेड ई इलेक्ट्रिक चार्ज है। इट्स क्लियर। एंड इट इज बम्बार्डेड बाई अल्फा पार्टिकल हेड ऑन। मतलब यहाँ एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है जहाँ से हम क्या है, काफ़ी डिस्टेंस पर है, मीन्स इसकी फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से काफ़ी दूर है। सो यहाँ से अल्फा पार्टिकल को हम हेड मतलब एकदम डायरेक्टली भेज रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कितना क्लोजली जा सकता है। तो तुमको मालूम है व्हेन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज टू द न्यूक्लियस व्हाट विल हैपन, ये जैसे एक ऐसा वो आ जाएगा कि ये एक सिग्निफिकेंट रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द हीलियम न्यूक्लियस, +2e। तुमको मालूम होगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते। सो व्हेन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज टू द न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस, देन व्हाट विल हैपन, एज इट becomes more and more closer to the nucleus, it will experience a increasing repulsive force। मतलब ये जा तो इस तरफ रहा, फोर्स क्या है, इस तरफ लग रहा। therefore its velocity will क्या होगा, velocity क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। and at one position it will come to the rest। it is clear। This will be the distance of closest approach for this value of velocity. For this value of velocity, this will be the distance of closest approach. Now, if you keep on increasing the velocity, अगर हम इसकी velocity को बढ़ाते ही जाएं, तब क्या होगा, ये और पास जाता जाएगा। और जब क्या है, ये एकदम इसको टच करने वाला होगा, जब ये इसको एकदम टच करने वाला होगा, देन ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी फर्दर दिस विल नॉट डिक्रीज। और ये डिस्टेंस हम मीचर करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि न्यूक्लियस का साइज क्या है। न्यूक्लियस का साइज क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मेन एम क्या था, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इंक्रीज्ड, it will come more and more closer to the nucleus. After a certain value of velocity, what will happen? This will not decrease further. ये further नहीं decrease करेगा। क्यों नहीं decrease करेगा? क्योंकि ये इतना close आ जाएगा, then strong repulsive force will be experienced and it will be returned back. So see here, what will be the distance of closest approach? How will you find? तो देख लो है क्या, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ पर है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी है, 0 कहाँ है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। न्यूक्लियस क्या है, रेस्ट पर है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज ऑफ विच इज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास हमने ले लिया 1। सो व्हाट विल बी 1/2 m into v²। दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच विल बी प्योरली काइनेटिक when they are at infinite separation from each other. When alpha particle is projected to the nucleus from an infinite distance, then total energy of the system means this plus this, it is equal to ½ mv², जिसको हम क्या कहते हैं, k। Now see here, when it will come to the rest at the distance of closest approach, then what will happen, this kinetic energy will be changed into potential energy। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है। सो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। व्हाट इज Q1, 2E, ये ZE, Q2 इज ZE अपॉन R0।
upon R naught. So what will be R naught? R naught equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into 2 ZE square upon K. हम हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ नहीं लिखते हैं, K लिखते हैं. आया समझे? अब देख लो, if the alpha particle is accelerated from rest, alpha particle is accelerated from rest by a potential difference V, तो कितनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा? तुमको मालूम है, अगर एक चार्ज पार्टिकल Q को हम रेस्ट से एक्सीलरेट करें बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस V, then how much kinetic energy will be acquired by it? Q into V. Q into V. It's clear? So if alpha particle is accelerated from rest by a potential difference V, then what will be K? K will be Q into V. Q कितना है यहाँ पर? 2eV. It's clear? So now we will see the numericals. नहीं तुम समझ नहीं रहे हो. जब हम अल्फा पार्टिकल को रेस्ट से एक्सीलरेट करते हैं बाई पोटेंशियल डिफरेंस V, तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा? दैट मच. इट्स क्लियर? सो नाउ यू सी द न्यूमेरिकल ओवर दिस. तो हमको केवल ये एक्सप्रेशन जानना है, इस पर क्वेश्चन ही है और 2 बार क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं. So you can see here there is one question in the example. 2008 में ये पूछा गया. अल्फा पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये क्या है? 1.8 MeV. How will you change it in electron volt, in joule? So in joule it will be 1.8 1.6 into 10 की पावर -13. अगर ये सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तब तो क्या हो जाता? 10 की पावर मिलियन है तो 10 की पावर 6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर -13. इट्स क्लियर? Each are incident on a thin gold foil from a large distance. Applying the principle of conservation of energy, find the closest distance of approach of the alpha particle from the gold nucleus. Z is given how much? 79. Other things are also given. So see here, as you know that from law of conservation of energy, loss in kinetic energy will be equal to gain in potential energy of the system. Loss in kinetic energy will be K minus 0. What will be gain in potential energy? 1 upon 4 pi epsilon naught ZE into 2E upon R naught. So from here R naught will be equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught 2ZE square upon E. So now you substitute the value. So R naught equals to, और ये डिस्टेंस हम किसके टर्म्स में निकालेंगे? या तो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर. आए समझे? हमको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है, हरदम कैसे एप्रोप्रिएट यूनिट होनी चाहिए. एप्रोप्रिएट यूनिट मीन्स लखनऊ की डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में नहीं बताएंगे. आए समझे? और सन की डिस्टेंस हम किलोमीटर में नहीं बताएंगे. वो क्या है? लाइट ईयर में यूज की जाती है. मतलब जैसी फिजिकल क्वांटिटी का साइज है उसी के हिसाब से यूनिट ली जाती है. सो सी हियर 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 की पावर 9. दिस इज 2 into 79 into 1.6 into 10 की पावर -19 होल स्क्वायर अपॉन
K is how much? 1.8. So ये तुम कैलकुलेट कर लोगे, it will come out in meter and then you will convert in nanometer or angstrom. So here it comes out 12.64 10 to the power minus 14 meter. Is clear? Now if you calculate it in angstrom, it will be equal to how much? 12.64 into 10 to the power minus 4 angstrom. Is clear? So एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आ सकता है, समझ में आ गया? अब देख लो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पूछा गया है, कई लोगों अधिकतर लोग कर नहीं पाए थे उस क्वेश्चन को। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल सेल? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल सेल? यस यू गौरी। एल सेल में जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो तुमने पढ़ा है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। व्हाट इज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सम परमिटेड ऑर्बिट्स एंड दीज परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. So when it will be in the L cell, L cell में होगा तो कितना होगा? बताओ 3 होगा या 2? वो 3 बता रहे हैं। 2 इंटू h अपान 2 पाई, 2 2 कैंसिल, h अपान पाई। अगर K सेल में पूछे तो कितना हो जाएगा? h अपान 2 पाई। ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया है, तुम देखोगे तो मिलेगा तुमको इसी बुक में ही। तो एक तो क्वेश्चन ये, देन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ओवर दिस, डेल्टा E इक्वल्स टू hc upon lambda means what wavelength will be absorbed or what wavelength will be emitted out. Absorb कब होगा? When from lower energy state to the higher energy state, from K cell to the L cell. It's clear? Then it will be absorbed. Otherwise, if it is making transition, transition का मतलब ही क्या है? Moving from higher to the lower. It's clear? Then what will happen? It will be emitted. So you can see इन्हीं 3 पर आ सकते हैं, डेरिवेशंस आ सकते हैं। डेरिवेशंस तुमको R का मालूम होना चाहिए, फिर किसका मालूम होना चाहिए? एनर्जी का, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी है उसके पास्टुलेट्स मालूम होने चाहिए। अक्सर आता है राइट डाउन द बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, राइट डाउन द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये 2 बहुत अधिक पूछे जाते हैं। न एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज नॉट इन योर कोर्स। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? When electron moves from where to where? From lower energy level to higher energy level. वो अब हमारे कोर्स में नहीं है। Now you can see here. This is one question asked in 2005, and you do all the numericals which have been asked in the previous year. क्योंकि क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल आएंगे बोर्ड में। इन ए हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 3 to 2। कहाँ से कहाँ हो रहा? 3 से 2 में हो रहा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटॉन। विल द फोटॉन बी विजिबल टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज विल दिस फोटॉन बिलोंग? बताओ किस स्पेक्ट्रल सीरीज को बिलोंग कर रहा? बामर। क्यों? क्योंकि खत्म कहाँ हो रहा? 2 पर खत्म हो रहा। सो व्हाट इज द लैम्डा? सो यू नो द फार्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू R
विद इन ब्रैकेट 1/nf स्क्वायर माइनस ni square. Yes, Priyanka. What will be nf here and what will be ni? 3 से 2 हो रहा. nf will be 2 and ni will be 3. स्टार्ट यहाँ से हो रहा, खत्म यहाँ हो रहा. So it will be equal to r 1/2 square minus 1/3 square. When you will simplify, so it is 9 minus 4 upon 36. So it will be 5r upon 36. हमने डायरेक्टली कर दिया है, मालूम होगा. So what will be lambda? Lambda equals to 36 upon 5r. And here also wavelength either you will express in nanometer या एंगस्ट्रॉम. जैसे 6563 एंगस्ट्रॉम आ रहा, so in nanometer it will be equal to what? 656.3 नैनोमीटर. ये मालूम होना चाहिए. ये समझ में आ गया ना कि एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में चेंज करना है. डेसिमल क्या है, 1 प्लेस बैक करते हैं. सो सी here value of r is given. This is 36 divided by 5 into 1.097 into 10 की power 7. It's clear? So when you will calculate, it comes out 6.563 into 10 to the power minus 7. This meter, ये मीटर में आएगा आंसर भी. एंड व्हेन इट विल बी फर्दर सिंप्लीफाइड, 6563 into 10 to the power minus 10 meter. So in angstrom it will be equal to what? 6563 angstrom.